ਹੈਲੋ एवरीवन, जो मास्टर कंसैप्ट सीरीज़ अपनी चल रही है उस ਆਪਾਂ कई लैटर जो ईडीएम फ्रेजेस कर चुके हाँ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ MCQs ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ select the option that correctly conveys the meaning of the idiom. Despite having a brilliant strategy, the team was forced to go back to the drawing board after the pilot project's complete failure. Yes, ਹੁਣ ਇਹ idiom ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Back to the drawing board. Back to the drawing board. ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ। First है re-evaluate and restart the planning process from the beginning. Draw visual representation of the process. Project, postpone the project permanently. Proceed with the existing plan. हाँ जी, back to the drawing board ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? re-evaluate and restart the planning process from the beginning. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ। नेक्स्ट ईडियम है द रेगुलेटरी बॉडी kept the entire bidding and tender process dash to ensure complete transparency and prevent any corruption changes. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ट्रांसपेरेंसी आ गया मतलब कि कोई चीज़ साफ साफ दिखाना मतलब कि कोई गड़बड़ कोई बेईमानी ना करना, इसका मतलब ईमानदारी नाल करना। तो ईमानदारी नाल काम करने के लिए अपने इन्हां दे विचों जो ईडियम यूज़ करते हैं वो हुंदा अबव बोर्ड। जो अपने ईडियम पूछे जाते हैं वो इस तरह फिलिप्स के तौर पर भी आ सकते हैं या फिर सीधा मीनिंग भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है the two political leaders have been in a state of extreme hostility and bitter enmity even since the controversial legislative bill was passed. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਡੈਗਰਸ ਡਰੋਨ। ਐਟ ਡੈਗਰਸ ਡਰੋਨ ਮਤਲਬ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਗਰਸ ਡਰੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਕੱਟ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਨੋਟ। ਯੈਸ, टू कट द गार्डियंस नॉट, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ? टू डिस्ट्रॉय एन अपोनेंट्स आर्गूमेंट नहीं जी। टू कॉज एन इरिपेयरेबल लिफ्ट ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। टू अनटाई अ फिजिकल नॉट, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। टू सॉल्व अ कंपलैक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम यूजिंग क्विक डिसीसिव एक्शन, मतलब ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਕੱਟ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੋਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਬਿਹਾइंड द 8th बॉल। यस, क्या आएगा आंसर? बिहाइंड द 8th बॉल इन अ डिफिकल्ट disadvantages or losing position, having a secret hidden advantage over an opponent, unaware of surrounding danger until it is too late, working late into the night to meet critical deadline. Yes, जो behind the 8th ball ਹੁੰਦਾ है in a difficult disadvantages और losing position, मतलब ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ टू अज्यूम एयर्स। एयर्स शब्द यूज़ किया जाता है एरोगेंस के लिए, ठीक है, कोई एरोगेंट है, किसी को घमंड है ज़्यादा, उत्थे यूज़ किया जाता है। टू रिमेन हंबल तो नहीं होएगा। टू बिहेव इन एन एरोगेंटेड यस सुपीरियर आर्टिफिशियल मैनर टू इंप्रैस अदर्स, तो वो लिए आप यूज़ करते हैं। नैक्सट टू क्राई वुल्फ। यस, हूँ ये पूछा गया है कि किस सेंटेंस ने उन्होंने सही तरीके नाल यूज़ किया है। तो क्राई वुल्फ का की मतलब होंदा है कि जो फॉल्स अलार्म देना, जो चीज़ है नहीं है आप कहना कि हाँ भी वो हो गया तो वो होंदा क्राई वुल्फ। हुण इहदे विच किहड़ा आएगा? शी बिगैन टू क्राई वुल्फ व्हेन हर पेट डॉग वेंट मिसिंग, नहीं। द कंपनी क्राइड वुल्फ बाय वर्किंग डे एंड नाइट फिक्स सिक्योरिटी, नहीं। इफ़ यू कंटिन्यूसली क्राई वुल्फ अबाउट माइनर ग्लिचेस नो वन विल हेल्प
ਵੈਨ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਕਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈ ਵੁਲਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਫ ਦੀ, ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ 'ਚ ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਯੈਸ, ਵਿਚ idiom best describes taking on a task or responsibility that is far beyond one's capacity। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ idiom ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ क्षमता ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਬਾਈਟ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਟੂ ਕੁੱਕ ਦ ਬੁੱਕਸ, ਯੈਸ, ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੂ ਕੁੱਕ ਦ ਬੁੱਕਸ। यस, टू फॉल्सीफाई फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और इलीगली। ठीक है, जो सरकार कोई दस्तावेज हैं जिहदे च तुसीं कोई गड़बड़ कर रहे हो जे, तो उत्थे यूज करदे टू कुक द बुक्स। दैन कूल वंस हील। कूल वंस हील मतलब किसी नूं वेट, जो कोई बहुत देर तो वेट कर रहा है। कूल वंस हील, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। then an axe to grind, yes, an axe to grind, ਕੀ ਆंसर ਹੋਏਗਾ, you have an axe to grind, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। you have an axe to grind। next, the examination center is only 5 kilometers away dash, but the heavy city traffic makes it a 2-hour journey। मतलब वो सीधा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर है पर वो बढ़ा दिंदा। हाँ जी, तो सीधे रस्ते लिए आप की यूज़ करते हैं एज द क्रो फ्लाइज। ठीक है, सीधा स्ट्रेट रस्ता, उन्होंने सीधी जगह जो जा रही है सड़क, उन्होंने कहते हैं क्रोज फ्लाइज। नेक्स्ट है वेयर were completely puzzled, yes, the developers were completely puzzled and overwhelmed, not knowing what to do next to fix the security breach। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, idiom 67 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, daggers drawn at their wits end behind the 8 ball, yes, completely puzzled ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ at their wits end। next, ਐਪਲ ਪਾਈ ਆਰਡਰ। ਐਪਲ ਪਾਈ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਨੀਟ ਫਲॉलेस ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਔਰ ਆਰਡਰ, ਐਪਲ ਪਾਈ ਆਰਡਰ। ਨੈਕਸਟ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਪ ਦ ਰੋਂਗ ਟਰੀ, ਯੈਸ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਪ ਦ ਰੋਂਗ ਟਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉसी ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਪ ਦ ਰੋਂਗ ਟਰੀ। ਯੈਸ, pursuing a mistaken line of thought or accusing a wrong person, making loud noise to scare, trying to solve a problem without etiquette, complaining about the past event। yes, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, first pursuing a mistaken line of thought। next, बेल द कैट। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो केड़ा होएगा जेड़ा जाके रिस्क लेगा दूजे पर्सन, दूजे पीपल दे लई या अपने ग्रुप दे लई, ओदे चंगे दे लई जाके खुद जाके रिस्क ले गया, अगे होएगा। नेक्स्ट, चूजिंग बिटवीन रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट एंड रीलोकेटिंग टू अ डिस्टेंट सिटी लेफ्ट हिम। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੂਆ ਹੈ। ਬਿਟਵੀਨ ਡੈਵਿਲ ਐਂਡ ਦ ਡੀਪ ਬਲੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਰੀ ਦ ਹੈਚਟ। ਯੈਸ, ਬਰੀ ਦ ਹੈਚਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀ ਦ ਹੈਚਟ कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है उन्होंने खत्म करना, शांति बनाए रखना, उसनों कहते हैं बरी द हैचट। ठीक है, तो टू हाइड एविडेंस, टू सेव मनी, टू प्रिपेयर फॉर एन अपकमिंग बैटल, टू एंड अप अ क्वैरल। यस, टू एंड अप अ क्वैरल एंड मेक पीस, शांति बनाए रखना।
बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेज ग्रो करना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यस। रैपिडली और वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी नाल, बहुत ही तेजी नाल, वेरी क्विकली। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यस, क्या आंसर आएगा? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ही स्टडीड हार्ड फॉर मंथ्स एंड टॉप द नेशनल, हुण सही सेंटेंस दसना जिस यूज किया है। The firefighter escaped the collapsing building by skin of his teeth. She completed her painting with perfection by skin of her teeth. They celebrated their grand wedding by skin of their teeth. By skin of teeth मतलब बाल बाल बचना आता है। इतने जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? फायर फाइटर ने एस्केप्ड, ऐसे मतलब बच के बाहर निकलिया, ठीक है, बिल्कुल बाल बाल बच के बाहर निकलिया। नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड मतलब जो चीज़ है वो साफ साफ तरीके नाल बोल देना। तो इत्थे की आंसर आएगा? टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली विदाउट ट्राइंग टू हाइड द ट्रुथ, ठीक है, कॉल अ स्पेड। देन कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, हवाई किले मतलब कि तुसी ख्याली प्लाव बना रहे हो। अनरियलिस्टिक प्लान्स, होप्स, ड्रे ड्रीम्स, अनलाइकली टू हैपन, जेडे हो नहीं सकते वो काम तुसी करन सोच रहे हो कि हाँ भी एवें हो जाएगा, फिर एवें हो जाएगा, पहला सारा पेपर क्लीयर हो जाएगा, फिर असी अफसर लग जाएंगे, फिर असी आ करांगे वो करांगे, तो वो की है बिना मेहनत तो की है ख्याली प्लाव, ठीक है। बट जिस नाल मेहनत कर रहे हो तो वो पूरा हो सकता है। देन ईडियम केड़ा है? he handles the complex negotiation effortlessly proving he is a dash, yes, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती नाल बड़े आराम नाल स्मूथली कर ਲੈਂਦਾ है। क्यों? क्योंकि वो किस तरह का है? अपने पेरेंट्स की तरह है, ठीक है। तो इत्थे की आएगा? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब वो रिजेंबल करता अपने पेरेंट्स की तरह कि जिदा वो साम लेंदे ਉਹਦੇ ਚ जिवें ब्लड च ही है वो चीज़, ठीक है, किसी काम नूं करन दी। नेक्स्ट है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यस, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स की आएगा? टू डेकोरेट अ हॉल फॉर अ सेलिब्रेटरी इवेंट, बिल्कुल नहीं। एस्केप फ्रॉम कस्टडी विदाउट गेटिंग कॉट, टू शो एक्चुअल इमोशन ड्यूरिंग अ क्राइसिस, टू इमर्ज विक्टोरियस, यस, विक्ट्रियस एंड अचीव ग्रेट सक्सेस, जित प्राप्त करना, बहुत शानदार जित प्राप्त करना, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। देन क्रोकोडाइल टीयर, यस, क्रोकोडाइल टीयर जो बिल्कुल ही फेक डिस्प्ले मतलब कोई थोनू झूठा तुसी दर्द दुख दिखा रहे हो, अंदरों तुसी नहीं दुखी हैगे पर उपरों दिखा रहे हो, उत्थे यूज करते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। टू गेट स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेन पॉइंट ते आना सीधा, इधर उधरली गल ना करना, मेन पॉइंट दे उत्ते आना। उत्थे आपां करदे हां की करते हैं? क्लीयर द एयर, बीट अराउंड द बुश, तो इस तो उल्टा होंदा है, गोल मोल गल करना। कट टू द चेस, यस, कट टू द चेस मतलब क्या होंदा है कि स्ट्रेट उस पॉइंट ते आना जो तुसी कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, हुण जे दोनों एंड्स तो आप बर्न करांगे कैंडल नूं तो की होगा कि वो खराब हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी। तो जदों कोई जिन्ना मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ है हिम्मत उस तो वध काम करता है उत्थे आपां यूज करते हैं। टू वेस्ट इलैक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, टू ओवरकम वन सेल्फ विदाउट टेकिंग, हाँ यस, ओवरवर्क वन सेल्फ विदाउट टेकिंग इनफ रेस्ट, रेस्ट नहीं ले रहे तुसी काम करी जा रहे हो तो उत्थे यूज करते हैं। टू बर्न द कैंडल बट बोथ एंड्स, टू मेक अ बैड सिचुएशन और इवन वर्स उत्थे भी की यूज करते हैं, यस, add fuel to the fire, add fuel to the fire। all ears means, next है all ears, all ears having large ear तो बिल्कुल नहीं होएगा। eagerly listening and being completely attentive, ignoring surroundings, उनको all ears बिल्कुल कन ला के कन खड़े करके सुनना मतलब बहुत ही ध्यान नाल सुनना, अटेंटिव होके कोई गल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कैरी द डे, यस, कैरी द डे, कैरी द डे किसनू कहते हैं? टू कंप्लीट डेली रूटीन काम करना, लिफ्ट हैवी लगेज, विन विक्ट्री कॉन्टेस्ट या आर्गूमेंट,
टू पोस्टपोन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टुमारो। हाँ, पोस्टपोन नहीं ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕੈਰੀ ਦ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਵਿਨ ਅ ਵਿਕਟਰੀ ਕੌਂਟੈਸਟ ਔਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਰੀ ਦ ਡੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਡਾਈ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ। ਯੈਸ, ਡਾਈ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਪਾਸ ਅਵੇ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨ ਵਨ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਡਾਈ ਵਾਈਲ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਂਗੇਜ। ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਈ ਇਨ ਹਾਰਨੈਸ। नेक्स्ट है डैम्प स्क्विब। यस, डैम्प स्क्विब, a massive unexpected financial success, thoroughly planned operation executed with precision, complete failure that falls far short of expectations। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ठीक है, एक complete failure, बिल्कुल हार जाना, कोई काम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ असफल हो जाना ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। हाँ जी, डेविल मतलब शैतान। शैतान का एडवोकेट कौन होएगा? जो विच दे आर प्रेजेंटिंग। हाँ जी, ये दसना आपां कि किहड़ा सेंटेंस सही है। दे आर प्रेजेंटिंग अ काउंटर आर्गूमेंट टू स्पार्क डिबेट और टेस्ट एन आइडिया। दे आर डिफेंडिंग अ नोटोरियसली अनपॉपुलर क्रिमिनल नहीं, काइंडली एग्रीइंग विद द मेजॉरिटी नहीं। यस, यही आएगा। दे आर प्रेजेंटिंग अ काउंटर आर्गूमेंट देना, ठीक है, उसनों डिबेट नूं होर अच्छा बनाउण लई। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स किहनूं कहा जाता है? जिहड़ा तुहानूं ऐ लगे कि कोई भी पता ही नहीं सीगा इहदे बारे, तां छुपिया होया सीगा बिल्कुल, और एकदम अनएक्सपैक्टेडली कोई विनर बन जाए, उत्ते आपां कहने डार्क हॉर्स। ठीक है, अनएक्सपैक्टेड विनर, समवन हू अनएक्सपैक्टेडली सक्सीड्स और विन अ कॉम्पीटिशन, उन्होंने कहने आपां डार्क हॉर्स। डॉग इन द मैनेजर। यस, मैंगर। डॉग इन द मैंगर क्या होंदा है? पर्सन हू प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉय समथिंग दे कैन नॉट यूज दैमसेल्फ। मतलब जो कोई होर कोई खुशी मना रहा है तो उन्होंने खुशी ना मनान देना। ठीक है, जो काम खुद नहीं कर सकते दूजे नूं ना करन देना, तो उत्थे आपां यूज करते हैं। नैक्सट हैगा डैड वुड। डैड वुड किनूं कहंदे हैं? जो काम, जो समान ऐसा पिया जिहड़ा अपने काम नहीं आंदा हैगा पर आपां फिर भी रखिया होया उसनूं, तो उत्थे यूज करते हैं। पीपल और थिंग दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल और प्रोडक्टिव, वो की है डेड वुड। टू ड्रॉ अ ब्लैंक। यस, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू सक्सेसफुली क्लियर ऑल ऑब्स्टेकल्स इन अ रेस, टू रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन, बिल्कुल नहीं। टू फेल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, आंसर और सक्सेस। यस, तुसी किसी नतीजे ते ना पहुँच पाओ तो उत्थे आपां की कहने ड्रॉ अ ब्लैंक। नेक्स्ट, डेड रिंगर। यस, डेड रिंगर, अ फ्रॉडुलेंट कॉइन और काउंटरफिट करेंसी, अ टेलीफोन लाइन दैट हैज़ बीन डिसकनेक्टेड, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक अलाइक। यस, डेड रिंगर क्या होंदा? जिहड़ा बिल्कुल एक दूजे नाल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का दिखदन वाला, कहने डेड रिंगर। नेक्स्ट, डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल हजार्ड, बिल्कुल नहीं है। अ रेस और सिचुएशन हुज आउटकम रिमेन्स अनडिसाइडेड अंटिल वेरी लास्ट मिनट, या अ स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल वजह दैट लीव्स नो रूम फॉर एरर, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट हैज फेल्ड ग्लोबली। यस, अ रेस और सिचुएशन हुज आउटकम रिमेन्स अनडिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट तक भी ਉਹਦਾ कुछ पता ना लगे भी की ਉਹਦਾ नतीजा, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ यूज करते हैं डाउन टू द वायर। Don't put your eggs in the same basket, all eggs in the same basket. Trusting strangers with sensitive information गलत है। Concentrating all resources or risk in a single place or venture, investing money only in high risk stock नहीं, relying on traditional method instead of modern technology, बिल्कुल नहीं। तो इत्थे की आएगा कि तुसीं सारे दे सारे अपने रिसोर्सिस नूं इक्को ही प्लेस ते रख दिता। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਈਗਲ ਆਈ। ਈਗਲ ਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਹਦੀ? ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਚਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਜ਼ ऑब्जर्वेंट ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਗਲ ਆਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਈਅਰ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਯਸ, ਈਅਰ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਣਾ मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ का ध्यान नाल मतलब ध्यान रखना कि की हो रहा है। ठीक है,
स्टेइंग कॉन्सटेंटली इनफॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स ट्रेंड्स, जो भी ग्राउंड लैवल के उत्ते जो चेंजिज आ रहे हैं वो बारे पूरा ही मतलब सजग होना कि हाँ भी उन्होंने पता होवे की चेंजिज ने। ईगर बीवर, पर्सन हु वर्क्स लेजली वर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, समवन हु क्रिएट्स अननेसेसरी ऑब्स्टेकल इन द प्रोजेक्ट नहीं, अ कीन हार्ड वर्किंग ओवरली एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो कुछ ज़्यादा ही जोश के नाल काम करता उत्ते उन्होंने कहते ईगर बीवर। ईट हंबल पाई, हंबल की हुंदा है निमर, तो जिहड़ा हंबल पाई खावे वो किदां दा बंदा होएगा, वो होएगा टू एडमिट यू आर रॉन्ग, अपोलोजाइज है ना, जिहड़ा अपनी गलती मन्नेगा, माफ़ी मंगेगा, ठीक है, उन्होंने आपां कहने। दैन टू ईट वंस वर्ड, अपने शब्द नूं खा लेना, मतलब तुसी कुछ गलत बोलता तो उन्होंने तुसी चेंज कर देना, ठीक है। टू टेक बैक समथिंग यू सैड आफ्टर डिस्कवरिंग यू वर मिसटेकन, कि तुसी गलती नाल कुछ कहता उन्होंने वापस लेना। नैक्सट एज ओवर, यस एज ओवर मतलब किसी चीज़ का थोड़ा स्लाइटली एडवांटेज मिल रहा है, मतलब तुसी कोई पेपर पहला प्रिपेयर कर रहे हो, पहला तो पढ़ रहे हो, तो जो एकदम पेपर आएगा तो तुसी उन्होंने थोड़ा स्लाइट एडवांटेज मिलेगा रादर दैन कि जिहड़े ने हुणी स्टार्ट किया होएगा, तो टू हैव अ स्लाइट एडवांटेज और सुपीरियरिटी ओवर समवन। दैन एल्बो रूम, एल्बो रूम किसनूं कहा जाता है, प्रोफैशनल या फिर पर्सनल सैटिंग च कहा जाता है एडिकेट स्पेस टू मूव वर्क कंफर्टेबली, जिथे तुसीं आराम नाल काम कर सकते हो अलॉन्ग विद फ्रीडम, पूरी आज़ादी के नाल, उन्होंने कहा जाता है एल्बो रूम। नैक्सट एलिफेंट इन द रूम, मैसिव डेकोरेटिव स्टैचू बिल्कुल नहीं होएगा। एन ऑबवियस मेजर प्रॉब्लम कॉन्ट्रोवर्शियल इशू दैट पीपल डेलिबरेटली अवॉइड डिस्कसिंग, यस ये होएगा कि कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जो कि बंदे जिहदे बारे गल नहीं करते ज़्यादातर। वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट कम्स टू नथिंग डिस्पाइट हैविंग हैवी एफर्ट्स इट इज़ सेट टू, यस कोई तुसी बहुत ही चंगी तरह कोई प्लैनिंग करके कोई काम किया पर वो कोई नतीजा नहीं निकलिया बहुत एफर्ट्स के बाद भी, उत्थे आपां की यूज़ करते हाँ एंड इन स्मोक, मतलब बहुत मेहनत की पर नतीजा की निकलिया कुछ नहीं, सारा धुएं च उड़ गया था, एंड इन स्मोक। देन आई वॉश मतलब कि दूजे नूं धोखा देना, मेडिकल प्रोसीजर टू क्लीन डस्ट फ्रॉम आईज बिल्कुल नहीं, इनसिंसियर टॉक फॉल्स प्रोमिसेस और एक्शंस इंटेंडेड टू डिसीव मतलब धोखा देना और क्रिएट अ फेक इंप्रैशन, बिल्कुल सही है, उन्होंने कहते हैं आई वॉश, यस। थैंक यू वीडियो नूं पूरा देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, धन्यवाद।